Hello student, myself Simranjit Kaur. Today we will start the new chapter number 7, coordinate geometry. First of all, we will introduce with the coordinate word. Chapter 7, coordinate geometry. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ 9th ਕਲਾਸ ਜਾਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 0 0, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਓਰੀਜਨ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 0 ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਅਬਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਥਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਐਕਸ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਵਾਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਪਰ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ of a point from the y axis। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ y axis ਤੋਂ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ y axis ਤੋਂ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ y axis ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਫਰੋਮ ਦੀ y axis ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਬਸੀਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸ ਤੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਬਸੀਸਾ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
सॉरी अबसीसा बोलिया जाता वा, जिहड़ा वाई तो होगा उन्होंने असीं की बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जिहड़ा कोई पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जिहड़ा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस उत्ते लाई करता होगा, ठीक है, जिन्ने भी पॉइंट ने जिहड़े वो एक्स एक्सिस उत्ते लाई करते हैं वो सारे पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू की हो जाती है 0, क्योंकि वो पॉइंट तुहाडा लाइन के उत्ते पिया वा। तो उन्होंने असीं रीप्रजेंट करने का तरीका की आ एक्स कॉमा 0। जिन्नी देर भी तुहाडा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के उत्ते आ उन्हां सारे केस विच वाई की वैल्यू की हो जूगी अपने को 0। ठीक है, तो जे गल करिए आपां पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो जिन्नी देर कोई पॉइंट तुहाडे को वाई एक्सिस के उत्ते आ, ठीक है, तो उस टाइम ते तुहाडी एक्स दी वैल्यूज़ की हो जाणगियां 0। तो की आ गया अपने को 0 कॉमा वाई। जे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से आ तो एक्स कॉमा 0, जेकर कोई पॉइंट वाई एक्सिस से आ तो की लिखांगे उन्होंने 0 कॉमा वाई। ठीक है, तो जेकर इन्हां दोनों नूं कंबाइन देखा जाए एक्स कॉमा वाई, कंबाइन इस वर्ड नूं आपां की यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट, जिहदे विचों कल्ले एक्स वाले दा की नेम आ अपने को अबसीसा, तो कल्ले वाई वाले का नेम की आ ऑर्डिनेट। पर जदों तुसीं इन्हां दोनों नूं इकट्ठे पढ़ोगे तो इहदे लई वर्ड की यूज़ किया जाता वा कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर असीं इन्हां चीज़ों बारे ही पढ़ांगे, होर भी बहुत कुछ रीड करांगे। ठीक है, उस तो पहले एक छोटा जिहा तुहाडे लई एक टैसट है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पा रही हाँ, सब ने उहदा अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना वा। फर्स्ट ये पार्ट आ, तुसीं दसना वा भी किहड़ा पॉइंट किहड़े कोआर्डीनेट के अंदर लाई करदा, मैच दी कॉलम की तरह वा। पॉइंट आ मेरे को 3,4, 0,-3, 2,-3, ठीक है, -2,4, 0,5। हुण ये कुछ पॉइंट ने, तुसीं दसना वा इन्हां दे मैच दा कॉलम की होणगे। इधर मैं ऑप्शन दे देनी आ, पॉइंट होगा कोआर्डीनेट के अकॉर्डिंग, ये आ गया अपने को थर्ड क्वाड्रेंट ऑन द एक्स एक्सिस, on the y-axis, first quadrant, second quadrant। ठीक है, तुहाडे लई मैच का कॉलम आ, तुसीं दसना वा कि इन्हां चों किहड़ा किहनूं मैच करदा वा। लास्ट पॉइंट आ 5,0, जिहड़े भी बच्चे नूं आंसर होगा पता नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करियो। ठीक है, एक क्वेश्चन तुहाडे लई पेंडिंग आ। चलो हुण नैक्सट गल करते हैं जो अपना मेन अज का टॉपिक आ। टॉपिक की है बच्चे, मान लो कि तुहानूं कोई भी 2 पॉइंट दिते हुए आ ग्राफ के अंदर, एक पॉइंट इस जगह पर लाई करता पिया वा, एक पॉइंट इस जगह पर लाई करता पिया। ठीक है, इस पॉइंट की भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, फिलहाल इन्हूं मैं नाम दे देनी है x1 y1। जिहड़ा पॉइंट दूसरी जगह पर पिया होगा उसकी भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिन्हों आपां नेम दे देने x2 y2। ठीक है, हुण ये 2 पॉइंट तो पे ने ग्राफ के उत्ते, पर मैं इन्हां दोनों पॉइंट के विचकार देखना चाहनी हाँ भी कितना डिस्टेंस आ। ठीक है, इन्हां दोनों की कितनी लंबाई आ, या कह लो इन्हां दोनों विच कितनी दूरी आ। ठीक है, यानी कि मैं इन्हां दोनों विच की फाइंड करना चाहनी हाँ, डिस्टेंस। तो जदों अपने को 2 पॉइंट होण ते तुसीं उन्हां दोनों विचकार डिस्टेंस पता करना चाहते हो तो उहदे लई अपने को फॉर्मूला बनया होया वा, जिन्होंने तुसीं बोलते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि अपना मेन 7.1 का काम आ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हुंदा अपने को d = √of x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर। ठीक है, ये तुहाडे को हैगा वा फॉर्मूला। इस तरह हुण ये फॉर्मूला ड्राइव किदां होया होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। मान लो जिहड़े आ पॉइंट सी तुसीं उन्हां तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो तुसीं देखोगे भी तुहाडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती पई आ। जे तुहाडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती पई आ तो तुसीं देखोगे भी इत्थे तां पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, h² = b² + p²। ठीक है, तो जे मैं तुहानूं पुछा चाहां भी इत्थे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है देख लें।
मैनूं इन्ना पता भी इत्थों तो लैके इत्थों तक का जिहड़ा डिस्टेंस उहदा नेम y1 आ, इत्थों तो लैके इत्थे तक जिहड़ा डिस्टेंस आ उहदा नेम y2 आ। जेकर मैं सिर्फ इन्ने क पार्ट की वैल्यू पता करनी चाहवां तो की होगी, जिन्नी वो टोटल वैल्यू आ उस चों y1 नूं की कर देंगे असीं माइनस, यानी कि y2 माइनस y1। ठीक है, इस तरह जिहड़ा इत्थे पॉइंट आ, सॉरी उल्टा हो गया, इत्थे अपने को आ x1 आ x पर आप ठीक है इधरलियां वैल्यूज़ पता कीतियां, आ मेरे को y1 आ मेरे को y2 आ। इस तरह मैं बेस की वैल्यू पता करना चाहनी हाँ, इत्थे जिहड़ी मेरी वैल्यू वो x1 आ, इत्थे जिहड़ी मेरी वैल्यू x2 आ, तो मैं सिर्फ इन्ना डिस्टेंस पता करना चाहनी हाँ, तो की करांगे इहदी वैल्यू पता करने लई x2 चों x1 नूं की कर देंगे माइनस, तुहाडे को सिर्फ इन्ना रिजल्ट मिल गया, टोटल चों x1 नूं माइनस कर दो। ठीक है, तो जे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखो तो की बन जूगा h² इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 होल स्केयर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1 होल स्केयर, स्केयर आ h² का होता है की बन जूगा रूट। ठीक है, तो जेड़ा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला वर्ड यूज़ कर दी हाँ राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग की हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि सिंपल कंसैप्ट आ, बहुत ही थ्योरी अंदर जाने की लोड़ नहीं, सिंपल की आ कि जेकर आपको दो पॉइंट्स दिते आ, तुसीं उन्हां दोनों विचकार डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो तुसीं किहड़ा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ठीक है, इस तो बाद अपना नैक्सट कंसैप्ट की आ बच्चे ये रिगार्डिंग, फिर तुसीं इहदे अंदर नैक्सट एक्सरसाइज अंदर पढ़ोगे सैक्शन फॉर्मूला। हुण सैक्शन फॉर्मूला की आ, ठीक है, मान लो तुहानूं कोई भी एक लाइन दी होगी, उस लाइन नूं ने किसी ना किसी रेशो के अंदर डिवाइड किया होगा, इधर वाली रेशो का नाम मान लो मेरे को होगा m2, इधर वाली रेशो का नाम की होगा मेरे को m2, इत्थे मेरे को एक पॉइंट होगा जिहदी वैल्यू होगी x1 y1, इधर मेरे को एक पॉइंट होगा जिहदी वैल्यू होगी x2 y2। ठीक है, तो किसी P पॉइंट के उत्ते यह लाइन डिवाइड हो रही है, तो मैनू उस P पॉइंट की वैल्यू नहीं पता भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उस P पॉइंट को फाइंड करने लिए असीं यूज़ करांगे सैक्शन फॉर्मूला, जिहदे लई x की वैल्यू पता करने लिए असीं फॉर्मूला यूज़ करांगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह y की वैल्यू पता करने लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जेकर तुहानूं कदे भी रेशो दिती होवे, रेशो लई तुसीं हमेशा याद रखना तुसीं किहड़ा फॉर्मूला यूज़ करना वा, सैक्शन फॉर्मूला। जिहड़ी तुहाडी लाइन आ वो दो पार्ट्स के अंदर या तीन पार्ट्स के अंदर ब्रेक होगी तो उहदे लई फॉर्मूला की लगूगा सैक्शन फॉर्मूला, जिहदा फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जेकर y की वैल्यू पता करनी होगी तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जेकर तुसीं इहनूं लर्न करना चाहते हो, बहुत ईजी तरीका, उल्टा m1 नूं मल्टीप्लाई करना हमेशा b2 वाले बंदिਆਂ ਨਾਲ, m2 नूं मल्टीप्लाई करना हमेशा a वाले बंदिਆਂ ਨਾਲ। उल्टा कंसैप्ट आ m1 x2 प्लस m2 x1 ते अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस तो नैक्सट आ जाता अपने को मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल आ, x का फॉर्मूला की होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y का की फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपने को मिड पॉइंट का फॉर्मूला। नैक्सट जोड़ा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आऊगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। जेकर तुहानूं कोई ट्रायंगल पता आ, तुसीं उहदा एरिया पता करना चाहते हो तो उहदे लई जिहड़ा फॉर्मूला आ काफ़ी वड्डा फॉर्मूला पर लर्न करना ईजी आ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हुण कई बच्चों को फॉर्मूला लर्न करना बड़ा टिपिकल लगता होंदा आ, तो तुसीं ध्यान दो ये पैरों की काउंटिंग वाल 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। ठीक है, तो जोड़े बाहरले अखर होणगे वो हमेशा एक्स लिए यूज़ होणगे, जोड़े अंदर होणगे वो हमेशा वाई लिए होणगे, तो साइन किहदा चढ़ूगा अपने को माइनस का। ठीक है, तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 विच साइन का प्लस से। ठीक है, इस चैप्टर बारे इंट्रोडक्शन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया बच्चे, जेकर तुहाडे तीनों ही पॉइंट एक लाइन के उत्ते लाई करते होणगे, जेकर तुहाडे तीनों पॉइंट एक लाइन के उत्ते लाई करते होणगे, पहला तुसीं ये देखो भी उत्थों कोई ट्रायंगल बनूगी नहीं बनूगी। जे उत्थों ट्रायंगल ही नहीं बनूगी बच्चे तो उस केस विच तुहाडे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाऊगा 0। ठीक है, यानी कि इत्थों मेन पॉइंट की निकल आया
ਇਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, 0 ਦੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।